Assalamu alaikum. Today we will study the basics of tooth morphology. So, the objectives of today's presentation would be the dental formulae, eruption timing of both primary and permanent teeth, and the permanent dentition, anatomy of the tooth. We will study the anatomy of the tooth, understand the terms used in the dentistry, right? So here we go. So here we are talking about the quadrant. Quadrant क्या होता है? That is the one part. Quadrant is this part. ठीक है? जैसे कि this is the midline और यहाँ पर we have got this right quadrant. This is the left quadrant. This is here we go like हम यहाँ से right से जाते हैं left की तरफ और फिर left से नीचे आते हैं दूसरे lower left की तरफ and then we end up in the right quadrant, right? इस तरह से हम numbering भी करते हैं, उसी तरह से हम counting भी करते हैं. So we are talking about the quadrant only this side, ठीक है? This is upper quadrant and this is upper right quadrant and this is lower right quadrant. Here we can see मैंने जो formula put किया हुआ है that is I 2 by 2 means incisor. Upper quadrant में भी 2 incisor हैं और lower quadrant में भी 2 incisors हैं, ठीक है? Then canine upper quadrant में 1 है, right quadrant है तो उसमें 1 है, upper और lower में भी 1 है, ठीक है? और इसी तरह से molars upper 2 और lower 2, ठीक है? तो ये if we count it there are 5 teeth in right quadrant, upper and 5 teeth in lower quadrant, right quadrant, right? And total we have 10 teeth in each jaw, ठीक है? 5 यहाँ हो गए और 5 यहाँ हो गए. Then we have 10 in upper jaw and 10 in lower jaw, right? तो ये हमारे पास प्राइमरी का के टीथ हैं. प्राइमरी के टीथ 10 अपर हैं और 10 लोअर हैं, ठीक है? और इसमें हमारे पास वी डोंट हैव प्रीमोलर्स. Premolars are absent and we have the incisor, canines and molars, ठीक है? And the lower जब हम permanent की बात करते हैं, as you know we have 16 upper quadrant में हमारे पास 16 होंगे, right? If we count from incisor, we have incisors, we have canines, we have premolars. There in permanent we have premolars, we don't have the premolars are additional teeth and we have 3 molars in the permanent dentition in each quadrant, right? तो हमारे पास यहाँ पर incisors होते हैं upper 2 और canine upper 1 canine and lower 1 canine. We are talking about the single quadrant, right? तो ये जो है upper और lower इसमें 2 by 2 शो, 2 premolar upper में है और 2 premolar नीचे के quadrant में, और इसी तरह 3 molars upper के quadrant में और 3 molars lower के quadrant में. तो upper teeth में we have got 16 and lower में we have got 16 teeth. In total we have 32 teeth in the permanent dentition, as you all know about it, ठीक है? हमारे पास we have got 2 sets of teeth. Primary जब shed कर जाते हैं then we have this permanent dentition, ठीक है? पहले primary होता है और फिर permanent होता है. तो human beings में primary dentitions जो है प्राइमरी जो है 10 है और फिर एडल्ट स्टेज में हमारे पास परमानेंट डेंटिशन होते हैं, ठीक है? सो these two sets of teeth we have all in our lives. So मैं कहती हूँ कि permanent dentition you have to take very good care of this permanent dentition. प्राइमरी की भी आप क्योंकि प्राइमरी को ही जो है परमानेंट फॉलो करते हैं, ठीक है? अगर आप प्राइमरी पहले आपका जो है शेड हो चुका है तो परमानेंट में देयर कुड बी अ mal alignment in the permanent dentition. So the both of these sets of dentitions are important for us, ठीक है? So this is about the dental formulae of the human being, right? तो अगर हम लोअर फिर हमारे पास इसी तरह परमानेंट टीथ है जो कि हमारे पास
8 जो है ईच क्वाड्रेंट में होते हैं, 8 दांत यहाँ होते हैं, 8 यहाँ। हमारे पास परमानेंट में वी हैव गॉट प्रीमोलर्स एज वेल, जो कि प्राइमरी में नहीं होते, ठीक है। तो हम लोगों का प्राइमरी का सीक्वेंस कैसा है, सेंट्रल इंसाइजर, ये इसका निमोनिक है, छुट्टी लो मस्त चिल मारो। तो हमारे पास सेंट्रल इंसाइजर है, फिर उसके बाद हमारे पास लेटरल इंसाइजर है, फिर उसके बाद हमारे पास फर्स्ट मोलर एडप्ट होता है, और उसके बाद ये अपर की टीथ की मैं बात करी, ठीक है, केनाइन होता है, और फिर हमारे पास सेकेंड मोलर एडप्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास केनाइन जो है ये फर्स्ट मोलर के बाद एडप्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्राइमरी टीथ का सीक्वेंस है, किसका है, ये प्राइमरी टीथ का, जैसे कि यहाँ पर किड्स का सीक्वेंस है, ठीक है, मैंने किड्स दिखाए हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास प्राइमरी टीथ का सीक्वेंस है, जो कि 10 दांत है, ठीक है। और परमानेंट में हमारे पास 8 होते हैं हर क्वाड्रेंट में, जिसमें हमारे पास एडिशनल फिर प्रीमोलर्स भी आ जाते हैं। जो ये प्रीमोलर्स हैं ये सक्सीडेनियस टीथ होते हैं, और ये जो है प्राइमरी मोलर्स को कवर करते हैं, राइट। नाउ वी विल मूव। अच्छा, इसी तरह से इन्होंने जो है सीक्वेंस दिखाया हुआ है प्राइमरी का, ठीक है। सेंट्रल इंसाइजर है, फिर लेटरल है, फिर उसके बाद हमारे पास केनाइन है, फर्स्ट मोलर है, और फिर सेकंड मोलर। इफ यू हैव टू मेमोराइज इट, अगर आप ये इसको मेमोराइज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैंने आपको निमोनिक भी बता दिया है, इसके साथ साथ आप इसको फिर लर्न करें, राइट। फिर अब ये है हमारे पास परमानेंट का निमोनिक, ठीक है। मालिक हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट मोलर परमानेंट एरप्ट होता है, कौन सा, फर्स्ट मोलर। फिर उसके बाद हमारे पास आता है फर्स्ट इंसाइजर, ये जैसे इज है, इंसाइजर। फिर उसके बाद हमारे पास आता है सेकेंड इंसाइजर, दैट इज लेटरल इंसाइजर। फिर उसके बाद हमारे पास आता है प्री मोलर फर्स्ट, और फिर उसके बाद हमारे पास प्री मोलर सेकेंड, और फिर उसके बाद हमारे पास आता है केनाइन, और फिर उसके बाद हमारे पास सेकेंड मोलर, एंड देन फिर थर्ड मोलर, राइट। So this is a mnemonic. Mama is in power. Papa can't make mistakes. So this diagram is showing the eruption of permanent teeth. जैसे कि हमारे पास सबसे पहले permanent molar, first molar erupt करता है, और उसके बाद हमारे पास incisor, as I have mentioned in my जो mnemonic में ये mention कि फिर उसके बाद हमारे पास lateral incisor, और इसी तरह से सारा sequence, but you have to memorize it कि किस range में, किस years के range में कौन सा teeth जो है वो erupt करता है, right? अच्छा, अब ये हमारे पास है सीक्वेंस, किस चीज, ये जो है हमारे पास है, दीज आर द लैंडमार्क्स व्हाट वी हैव इन आवर टीथ। अपर वन इज एनेमल, ठीक है, एक क्राउन है, ये हमारे पास क्या है, क्राउन। इसको हम कहते हैं, इसके दो नाम है, एक होता है क्लिनिकल क्राउन, और एक हमारे पास होता है एनाटॉमिकल क्राउन, ठीक है। अब क्लिनिकल क्राउन क्या होता है, दैट इज द पार्ट ऑफ द tooth which is exposed in the oral cavity which we can see clinically जो आपको नजर आ रहा होता है, that is our clinical crown। अच्छा, क्लिनिकल क्राउन क्या है, जो हमें नजर आ रहा है, और एनाटॉमिकल क्राउन जो कि वेरिएबल होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पैथोलॉजीज द क्लिनिकल क्राउन्स कैन बी वेरिएबल, इट इज नॉट अ कांस्टेंट एंटिटी। जबकि एनाटॉमिकल क्राउन क्या होता है, दैट इज अ constant intensity, that is that part of the tooth which is covered by enamel। इसी तरह हमारे पास है clinical root, जो कि हिडन पार्ट होता है, जो कि हमें नजर नहीं आ रहा होता है। क्लिनिकल रूट क्या होता है, द हिडन पार्ट विच कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई इन द clinic, right, visible, which is cannot be seen in the naked eye in the oral cavity। And then we also have an anatomical root which is constant entity, that part of the tooth which is covered by cementum, right। अच्छा, जो हमारे पास टूथ सरफेसेस होती है ना, ये हमारे पास एक होती है लेबियल, दैट इज टुवर्ड्स द लिप, एक होती है लिंगुअल, दैट इज टुवर्ड्स द टंग, एक होती है मीजियल, और एक होती है डिस्टल। मीजियल क्या है, अगर हम बॉडी को, दिस इज द बॉडी, ठीक है, अगर हम इसको
टू हाफ्स में डिवाइड करें तो जो मिड लाइन के पास जो होता है ना सरफेस, उसको हम कहते हैं मीजियल। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ टूथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो कि मिड लाइन के पास है ये हमारे पास मीजियल होगा, और ये जो मिड लाइन से दूरी हमारे पास डिस्टल होगा, और ये हमारे पास लेबियल होगी जो कि सामने की तरफ लिप्स की तरफ जो सरफेस है, और जो हमारे पास टंग की तरफ है दैट वुड बी लिंगुअल। इसी तरह हमारे पास जब हम पोस्टीरियर टीथ की तरफ जाते हैं तो हमारे पास वी हैव गॉट अ बकल चीक ओवर है, ठीक है। तो जो सरफेस बकल की तरफ फेस की दैट वुड बी बकल सरफेस, जो टंग की तरफ दैट वुड बी लिंगुअल सरफेस, ठीक है। और जो इसकी, क्योंकि हमारे पास जो सरफेसेस हैं जिसपे हम बाइट करें दैट इज कॉल्ड एज अक्लूजल सरफेस, एंटीयर में हम इसको इंसाइजल सरफेस कहते हैं, ठीक है। और ये जो अक्लूजल सरफेस है इसमें भी हमारे पास पोस्टीरियर में एक मीजियल मार्जिन है, एक डिस्टल मार्जिन है, ठीक है। जो कि इन टीथ को जो है की सरफेस, ये जब हम आगे जाकर टीथ को पढ़ेंगे तो ये सारी सरफेस, सारी टर्मिनोलॉजीज यूज होंगी, सो यू शुड नो कि ये कौन सी टर्मिनोलॉजी क्या है। तो ये हमारे पास आ गई मीजियल सरफेस और ये हमारे पास है डिस्टल सरफेस, राइट। तो ये सारी सरफेसेस जो हैं we will study individually for each and every tooth, ठीक है। So the biting surface, name of the biting surfaces in anterior teeth is incisal, and name of the grinding surfaces in the posterior teeth are known as occlusal surface, right? This is the midline, you can see, ठीक है। Then there is, we divide the tooth in the three parts every surface। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करते हैं लेबियल सरफेस, तो इसको हम मीजियल, डिस्टल और मिडल थर्ड में डिवाइड करते हैं, ठीक है। थ्री पार्ट्स में हम हर सरफेस को डिवाइड करते हैं। हॉरिजॉन्टली दैट वुड बी इंसाइजल, मिडल एंड सर्वाइकल थर्ड, राइट, ठीक है। तो हमारी इसकी कौन सी डिवीजन है, एक वर्टिकल डिवीजन है और एक है हॉरिजॉन्टल डिवीजन। वर्टिकल में मीजियल थर्ड, मिडल थर्ड एंड डिस्टल थर्ड, एंड ओके ये हियर आई हैव शोन यू द सर्फेसेस। हम सर्फेसेस को कैसे डिवाइड करते हैं, सर्फेसेस को हम लोग जो है एज अ वर्टिकल डिवीजन, ठीक है, और फिर हॉरिजॉन्टल डिवीजन में डिवाइड। हियर आई हैव शोन द लेबियल सरफेस इन द हॉरिजॉन्टल डिवीजन वी नेम इज एज अ थर्ड्स। इन सारी सर्फेसेस को एज हम क्या लिखेंगे, एज थर्ड्स, ठीक है। तो ये हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल डिवीजन है उसमें इंसाइजल पार्ट को हम कहते हैं इंसाइजल थर्ड, मिडिल पार्ट को हम कहते हैं मिडिल थर्ड, और सर्वाइकल पार्ट को हम कहते हैं सर्वाइकल थर्ड। और वर्टिकल डिवीजन में दैट द surface which is near to the midline is known as mesial surface, the middle surface is known as the middle surface, and away from the midline is known as the distal surface। जो रूट है इसको हम सिर्फ हॉरिजॉन्टली डिवाइड करते हैं, सर्वाइकल थर्ड, मिडल थर्ड एंड एपिकल थर्ड, इसमें वर्टिकल डिवीजन नहीं होती, राइट। तो इसी तरह से अकॉर्डिंग टू द जो बाकी सर्फेसेस जैसे प्रॉक्सिमल सरफेस हो गई तो उसको भी हम एज दो में हॉरिजॉन्टल डिवीजन होती है और वर्टिकल डिवीजन होती है। वर्टिकल डिवीजन एज आई हैव शोन इट लेबियल, मिडल एंड लिंगुअल, और हॉरिजॉन्टल में इसी तरह से होगा इंसाइजल थर्ड, मिडल थर्ड एंड सर्वाइकल थर्ड, राइट। तो यहाँ पर भी हमने पोस्टीरियर टीथ में भी सेम डिविजन शो की हुई है कि हम उसको हॉरिजॉन्टली कैसे डिवाइड करते हैं और हम उसको वर्टिकली कैसे डिवाइड करते हैं। दिस इज वर्टिकल डिवीजन एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल डिवीजन, राइट। और इसी तरह से प्रॉक्सिमल सर्फेसेस को भी हमने शो किया हुआ है, राइट। So you have to make the concept of these thirds because in the individual tooth study we will use these terminologies, cervical third, middle third, and you should know about it, the surfaces, division of these surfaces in studying your teeth, right. In this diagram, I have shown the anatomical crown and the clinical crown and the differences between the clinical crown and anatomical crown. The anatomical crown is the constant entity that is covered by the enamel. Anatomical crown क्या होता है, constant entity है, और clinical crown क्या है, we have, this is the
वेरिएबल एंटिटी विच कैन वेरीज विद द पैथोलॉजीज ऑफ द टूथ, जैसे कि टूथ में शो किया हुआ है कि हमारे पास एक्सपोज्ड क्राउन जो होता है क्लिनिकली जो हम देख सकते हैं, जैसे कि ये है, इफ यू ओपन इन द पेशेंट यू कैन सी दिस क्राउन, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें रूट का पोर्शन भी बिकॉज ऑफ द पैथोलॉजी शो हुआ है। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे कि हमारे पास क्लिनिकल क्राउन जो है वो ये पार्ट है जो हमें शो हो रहा है, ठीक है, जो हमें विजिबल है विद द नेकेड आई। और हमारे पास एनाटॉमिकल क्राउन दैट इज कांस्टेंट एंट्री दैट पार्ट ऑफ द क्राउन व्हिच इज कवर्ड बाय एनिमल, दैट पार्ट ऑफ द क्राउन which is covered by enamel which is constant throughout the life, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखिए ये रूट का पार्ट भी शो हुआ है which is covered by cementum, लेकिन चूंकि ये विजिबल है एंड we can see it with the naked eye, तो ये हमारा clinical crown का पार्ट हो जाएगा। and we can see the clinical crown is larger than the anatomical crown, क्या है, ग्रेटर है, क्लिनिकल जो है हमारे पास anatomical crown से बड़ा है, right, because of this pathology, right। now if we talk about the root की भी दो terminologies यूज होती हैं, एक होता है clinical root और एक होता है anatomical root, right। तो anatomical root हमारे पास क्या है, that part of the root which is covered by cementum, यहाँ पर cementum और ये इनेमल मीट करते हैं और यहाँ पर सीमेंटम जो है वो रूट को कवर करता है। तो ये हमारे पास ये पार्ट क्या है, हमारे पास दिस इज द एनाटॉमिकल रूट। और क्लिनिकल रूट क्या है, दैट पार्ट ऑफ द रूट विच इज हिडन नॉट विजिबल, क्लिनिकल रूट इज द हिडन पार्ट ऑफ द रूट, ठीक है, विच कैन नॉट बी विजिबल विद द नेकेड आई, राइट। तो ये हमारे पास क्या है, अब जैसे कि इसमें थोड़ा सा इनेमल अगर आप देख लें तो यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा इनेमल भी यहाँ पर आ गया है, लेकिन चूंकि ये हिडन है तो हम इसको किस में ऐड करेंगे, क्लिनिकल रूट, राइट। तो हमारे पास रूट क्या है, दैट इज हिडन क्लिनिकल, एंड एनाटॉमिकल जो क्लिनिकल क्राउन है दैट इज विजिबल इन द ओरल कैविटी, राइट। Now here we can see the different pathologies of the gingiva, in which we can see this is the gingival recession and these are the crowns which are exposed in the oral cavity. This is you can see in clinically case में जो क्लिनिकल क्राउन है वो ज्यादा है देन द एनाटॉमिकल क्राउन, ठीक है, एनाटॉमिकल क्राउन है और ये क्लिनिकल क्राउन है। सो देयर इज अ डिफरेंस, यू शुड मेमोराइज इट विद द what is the anatomical root, what is the clinical root, and what is the clinical crown and clinical crown and anatomical crown, right? So the clinical importance for knowing these all landmarks is the procedures are possible in dentistry because of these landmarks. So the crown lengthening could be required while doing these procedures. So we should know if there is a little clinical crown available, so we should go for crown lengthening। यहाँ पर हम जो है lengthening करते हैं तो फिर हमारे पास crown structure जो है वो ज़्यादा visible हो जाता है, and we are able to undergo crown preparation and all other things, ठीक है। तो हमारे पास जो पेरियोडोंटल इंस्ट्रूमेंटेशन है वो भी हमें, अगर हमारे पास रूट्स एक्सपोज हो गई हैं तो हमें जो है वो पॉसिबल हो कि हमें पता हो कि उसमें कितनी क्लिनिकल रूट है या फिर हमारे पास एनाटॉमिकल रूट अवेलेबल है, आया हम उसमें पेरियोडोंटल सर्जरीज या पेरियोडोंटल प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। Okay, this is a very good diagram of the anatomical structure. You can see the anatomical structures in it. This is what this is. Okay, this is enamel. This is enamel. I will write E for it. And this is what underlying this enamel. This is dentine.
and in the root we have cementum covering the radicular dentine, and um, after this you can see this file entering into this pulp cavity. Here we have a soft connective tissue in the root that is known as pulp containing blood vessels, and this is what? This is pulp. So when the pulp gets infected, we do filing here, we remove the infected pulp in this root, and then we do irrigation. यहाँ पे आप देख रहे हैं, this is a pus because made because of this infections, and this is pulp, and this is in the crown we call it coronal pulp, and in the root we call it radicular pulp, right? तो ये हमारे पास से वी नो, हमें पल्प चैम्बर का पता हो, एनाटॉमिकल लैंडमार्क, यहाँ पर हमारे पास पल्प चैम्बर होता है, ठीक है, विद दिस अंडरलाइंग दिस डेंटिन, और फिर यहाँ पर हमारे पास वी हैव दिस रेडिकुलर पल्प। अच्छा, लास्ट डायग्राम में भी ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई विल डॉक्टर जमील विल पोस्ट अ वीडियो for you on this anatomical landmark, right? और ये हमारे पास क्या है, between the cellular bone and tooth we have this periodontal ligament holding this tooth in this functional position. Periodontal ligament एक connective tissue होता है जो कि ligament होता है जो कि इस tooth और इस alveolar bone, this is alveolar bone, right? ये जो होता है सारा जो इस टूथ को लाइन कर रहा है, ये सारा हमारे पास क्या है, दिस इज एल्वुलर बोन होल्डिंग दिस टूथ, ठीक है। और इस एल्वुलर बोन और इस टूथ के दरमियान होता है देयर इज अ लिगामेंट जॉइंट मेड, एंड दिस इज नोन एज, दिस जॉइंट इज नोन एज गम फोर्सेस, एंड दिस टिश्यू इज नोन एज पेरियोडोंटल लिगामेंट व्हिच हैज गॉट एक्सीलेंट रीजनरेटिव पावर, राइट। और ये दिस इज अ प्रोसीजर नोन एज रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जिसमें हम लोग इन्फेक्टिंग आरसीटी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, तो इसमें हम इन्फेक्टेड पल्प को रिमूव कर देते हैं और फिर उसमें हम फिलिंग करते हैं, और फिर जो है हमारे पास ये टूथ जो है हमारे पास दोबारा फंक्शनल पोजीशन में आ जाता है, राइट। Here this is showing a procedure known as perioscopy, in which we insert this endoscope and see the condition of these roots. Here you can see there is much calculus which is proliferating inside this root and making it releasing toxins and making inflammation over there, and if it has progressed into the root, if we do not treat it, then it may goes into the destruction of the adjacent tissues, and we can lose this tooth if it is left untreated. So we use perioscopy, in which we extend the instrument periscope over here, and we can see the कंडीशन ऑफ दिस रूट, ठीक है। सो ये हमारे पास क्लिनिकल रूट है, एनाटॉमिकल रूट को ये पूरा फिर हम लोग इसको जाकर इसकी पेरियोस्कोपी करते हैं, और फिर उसके बाद इसकी जो है क्लीनिंग होती है, यहाँ पर हम लोग क्यूरेटाज करते हैं, इस कैलकुलस को रिमूव करते हैं जो हम कॉज कर रहा है इन्फ्लेमेशन, और फिर उसके बाद वी कैन सी जो हमारी जो पेरियोडोंटल लिगामेंट होता है ना, देखिए ये हमारे पास जो है रूट है, and this is periodontal ligament, and it has got very good regenerative power, it is very good regenerative power, and if we remove this calculus, it regenerates itself, and we can have a healthy PDL after doing this curettage and after removing this calculus, right? Okay, now we will talk about the line angles and point angles. Here you can see this box, okay, it has how many surfaces, one is this, we name it as a labial surface, ठीक है, मैं AL लिख देती हूँ। ये है हमारे पास एक ऊपर की occlusal या incisal, या occlusal है या anterior में incisal surface होती है वो है, ठीक है, and this one is mesial proximal surface, mesial या distal, और जो पीछे की surface है जो हमें नजर नहीं आ रही, that is the लिंगुअल सरफेस, ठीक है, इस पे मैं थोड़ा सा स्टार्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास सरफेसेस है, यहाँ पर इस तरफ पे होगी हमारे पास डिस्टल सरफेस, तो ये सरफेसेस देखिए एक दूसरे के साथ मिल रही हैं, ठीक है, देयर इज अ जंक्शन between all these surfaces, this junction is between labial and occlusal, this junction
is between labial and occlusal. This junction is between labial and mesial. This junction is between labial and distal, and this junction is between occlusal and lingual, right? So ये जो सर्फेसेस हैं, जो दो सर्फेसेस अपने दरमियान एक जंक्शन बना रही हैं, लाइक जैसे कि ये है, तो इसको हम कहते हैं लाइन एंगल। ये सारे यहाँ पर लाइन एंगल्स हैं, राइट, लाइन एंगल्स, ठीक है। मेजियल और लिंगुअल के दरमियान भी लाइन है, ये भी लाइन एंगल, ये भी लाइन एंगल। सो दीज लाइन एंगल्स आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एवरी टूथ, ठीक है। अब जो ये लाइन एंगल्स हैं, हर एक में जो है हमारे पास तकरीबन 8 लाइन एंगल्स हैं और 4 पॉइंट एंगल्स हैं। पॉइंट एंगल्स क्या होते हैं? द जंक्शन फॉर्म्ड बिटवीन 3 सर्फेसेस। ये हमारे पास, मैं इसको रेड कलर में करती हूँ, ठीक है। ये हमारे पास दिस इज अ पॉइंट एंगल, ठीक है, जो 3 सर्फेसेस के दरमियान बन रहा है। सो वी हैव 4 पॉइंट एंगल्स एंड ऑलमोस्ट 8 line angles. So it is present in almost every tooth. So here you can see this is the line angle, ठीक है, ठीक है। एंटीरियर में है और ये है पोस्टीरियर में, ठीक है। और हर एक के सरफेस के साथ जब आप मिलाएंगे तो उसी तरह से लाइन एंगल्स हम इसको, जैसे कि अब ये इन्होंने लिंगुअल और इंसाइजल के दरमियान जो एंगल है, दैट इज वी कॉल इट लिंगो इंसाइजल लाइन एंगल। जो डिस्टल और लिंगुअल के दरमियान है ये और ये, तो इसको हम कहते हैं डिस्टो लिंगुअल लाइन एंगल। डिस्टो लेबियल, लेबियल सरफेस और इसके दरमियान जो है दैट इज डिस्टो लेबियल लाइन एंगल। ये सारे इसी तरह से लाइन एंगल्स हैं व्हिच इज मेड बिटवीन द टू surfaces of the, between the junctions of the two surfaces of the tooth, ठीक है। इसी तरह हमारे पास पोस्टीरियर में है लाइन एंगल्स, ठीक है। तो दिस इज ऑल लाइन एंगल्स, 8 लाइन एंगल्स हैं, राइट। और फिर हमारे पास जो पॉइंट एंगल्स हैं, दे आर बिटवीन द 3 सर्फेसेस, और इसको भी इसी तरह से हम नेम कर डिस्टो लिंगो, जैसे ये है डिस्टल, लिंगुअल और occlusal के दरमियान, ठीक है। दिस इज डिस्टल, दिस इज लिंगुअल और डिस्टो लिंगो occlusal लाइन पॉइंट एंगल, डिस्टो बक्को occlusal पॉइंट एंगल, मीजियो लिंगो occlusal पॉइंट एंगल एंड मीजियो बक्को, जैसे कि ये हमारे पास दिस इज मीजियल सरफेस, दिस इज बक्कल सरफेस एंड दिस इज this is occlusal surface, ठीक है। मीजियो बक्को occlusal पॉइंट एंगल, ठीक है। ये सारे पॉइंट एंगल इसी तरह से 3 सरफेसेस के दरमियान बने हुए हैं। लाइन एंगल्स, पॉइंट एंगल्स की क्या इंपॉर्टेंस है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन? जब हम किसी टूथ पे कोई क्राउन प्रिपरेशन करते हैं, कोई प्रोस्थेसिस उस पे, तो हमें इन एंगल्स को हमें इन एंगल्स को मद्देनजर रखना होता है, क्योंकि इन एंगल्स को हम थोड़ा सा राउंड ऑफ किया ताकि हमारे पास प्रेशर कांटेक्ट जो है, जो occlusal प्रेशर है, वो लोड जो है ये टूथ जो है वो सही बर्दाश्त कर सके, ठीक है। तो इस लाइन एंगल, पॉइंट एंगल्स को हम थोड़ी सी राउंडिंग ऑफ करते हैं थोड़ा सा, ताकि वो लोड डिस्ट्रीब्यूशन में जो है वो आसान, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास लाइन एंगल, पॉइंट एंगल्स हैं। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दीज थिंग्स। आप लोग को थोड़ा सा खुद से भी पढ़ना है, आप बुक उठाएं, उसको पढ़ें, एंड इफ देयर इज एनी confusion you can ask me, Dr. Jamil and Dr. Shakila, you can well ask them, they will answer you, ठीक है। वो आपको डेमोन्स्ट्रेट भी करेंगे लाइन एंगल्स और पॉइंट एंगल्स के बारे में। ओके, अस्सलाम वालेकुम। ये थोड़े से MCQs हैं, ये आप देख लें और इसके जो है रिप्लाई आप इसी उसमें दे दें, इसी ग्रुप में। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। नंबर 1 क्वेश्चन MCQ करके उसका आंसर लिखें, ठीक है। सारे MCQs हैं, ठीक है। तो आपको ये जो है यू शुड बी एबल टू रिकॉल योर नॉलेज जो आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। दिस इज योर MCQs, थर्ड MCQ, देन दिस इज योर मैसेज फ्रॉम मी, ठीक है। तो यू शुड बेटर लर्न एंड टेक योर टाइम। टूथ मॉर्फो को आपको टाइम देना होगा, तभी आपको ये समझ में आएंगी, ठीक है। तो इट हैज़ गॉट सॉलिड मार्क्स। यहाँ पर आपके जो है एग्जाम में 4 क्वेश्चंस आते हैं, SCQs आते हैं टूथ मॉर्फो से। सो 75% ऑफ योर जो है 25% ऑफ योर पेपर कंटेन्स दिस मॉर्फोलॉजी, राइट। बेस्ट ऑफ लक।